Everyone, this is Manisha and welcome to my YouTube channel which is BioLibrary. So in this authentic book series, I was teaching you this book called T.A.Brown which deals with the gene cloning as well as DNA analysis. These lectures will be useful respectively for CSIR exam as well as the questions pertaining to the part C specifically in CSIR exam and also for your PhD interviews. Also one day exams like BARC exams, right? So we have read, by far we have read about the 4th chapters which were present in the part 1. Part 1 of this book deals with the basic principles of gene cloning and DNA analysis, like what are the principles in which gene cloning and DNA analysis are based, in which we have successfully completed 4 chapters. First being why do we do gene cloning, that is the first chapter was why gene cloning and DNA analysis are important, like why do we do them in the first place, and the second was vectors for gene cloning, which is plasmids and bacteriophages, right? So we read about plasmids and bacteriophages in a little more detail, and then we read about purification of DNA from living cells, where I taught you that how to remove DNA from a cell in which it is lying inside the nucleus, right? And then manipulation of purified DNA was our 4th chapter. And now we are going to deal with our 5th chapter, which is introduction of DNA into living cells. So there is a little change in the format in which I'll teach you the chapters. That is, I will teach you with the help of this black screen whatever I want to explain you, I'll explain you here, and we will study this book in parts, right? So the idea of completing a chapter in 1 hour or 2 is not a good idea, because I think then small nuances and small concepts are missed. So I want to explain every and each bit of a concept in a very brief manner. So I should not take time in the concepts which are small, but concepts which are complex I want to take time, right? So I'll explain here in little more detail, and this video will come in parts, and I would like to do one thing, that is I will not extend the video from 25 to 30 minutes, right? Such that you can easily read it with along with your CSIR preparation if you're doing it daily. Otherwise, if you will once you'll qualify CSIR, then also you can read it, but I would advise you to go through this 20 to 30 minutes lecture every day, such that you get a hold on molecular techniques as well as molecular biology, right? So let's start our chapter. So all the chapter is basically divided into 5 parts. That is, first we'll study about transformation, that is the uptake of DNA by bacterial cell, then the identification of recombinant. So I can do one thing, that I can put this 5.1 and 5.2 in one column, like first the transformation and then we will study the recombinant screening, and in the second one, that is 5.3 and 5.4, I will introduce phage DNA into bacterial cell and followed by subsequent screening of the phages. So that is 5.3 and 5.4. 5.5 basically deals with the introduction of DNA into non-bacterial cell, like whatever vector other than E. coli we choose, we will study here. So let me concisely write that what I was talking about, that chapter 5 deals with. Broadly आपका chapter 5 में what and what comes under your chapter number 5, right? So there is just 3 segments they have told us कि हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. First one will be your transformation, that is if this is a bacteria and this is a naked DNA, then introduction of this DNA inside this bacteria will be the first concept we are going to read. In the process, we'll read how to make this bacterial cell competent so that it doesn't discard this DNA element, वो accept कर ले. तो competence कैसे develop करेंगे? First one will be that, and the second one will be introduction of phage DNA. If this is the DNA, then there will be capsid outside it, right? And how to introduce this DNA inside the bacterial cell, that will be the second one. That is, if I say in terms of the phenomena, it will be called as transduction, right? So the third one will not be concerned with your bacteria or virus, it will be something else, right? Whatever vector we use other than this E. coli or phage, we will study here, that is non-bacterial elements. So what is the essence? We are going to study 3 things. हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. First one will be your transformation, second will be your transduction. Not that कि हम उतना ही छोटा पढ़ेंगे, but we will study every step and bit wise कि क्या क्या हर step में हो रहा है और किस किस
स्टेप की क्या खासियत है, एंड नॉन बैक्टीरियल सेल के बारे में थर्ड कॉन्सेप्ट होगा। ऑल्सो मैं क्या करूँगी कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आई थिंक ऑफ सम PhD क्वेश्चन, some PhD interview question, then I'll write here, okay? Either you will answer it or I'll answer it in the next video, or I'll answer that in the same video itself, okay? So moving on. So the manipulations described in chapter 4, as I told you कि 4th chapter में हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे कैसे manipulate कर सकते हैं अगर हमें recombinant DNA बनाना है तो the manipulation described in chapter 4 allow the molecular biologists to create novel recombinant DNA molecules, right? अब जब हमने अपना RDT टेक्नोलॉजी में RDN मॉलिक्यूल बना लिया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बना लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इन जीन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट इज टू इंट्रोड्यूस दीज मॉलिक्यूल्स इनटू लिविंग सेल्स। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इट्स यू हैव क्रिएटेड अ रिकॉम्बिनेंट DNA एंड इट विल इटसेल्फ गेट ट्रांसफर्ड टू योर बैक्टीरिया, हमको ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। तो द नेक्स्ट स्टेप इन जीन क्लोनिंग, पहले रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बनाया, उसके बाद उसे ट्रांसफ़र करेंगे बैक्टीरिया में, जो ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा टू प्रोड्यूस क्लोन्स। एज वी ऑल नो क्लोन है सिमिलर पॉपुलेशन हो जाएगी। अब वॉट एवर आई अंडरलाइंड और हाईलाइटेड, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट ऑल्सो इन बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ना है, दैट्स वाई आई एम रीडिंग द एंटायर बुक फॉर यू, राइट? So strictly speaking, the word cloning refers only to the later stages of the procedure and not to the construction of the recombinant DNA molecule. So what is it trying to tell us? That if somebody in an interview asks you what is gene cloning, right? What is gene cloning? And do not ever think that this question cannot be asked, because when I went for BARC interview, then the question which was the most common question and was asked to everybody was, how will you define PCR in your own words, right? So this question can also be asked. So it is saying that whatever steps we have studied after the synthesis of our DNA molecule comes under cloning, like the later steps, right? So the later steps, they all come under the category called as cloning. You can do one thing, you can simultaneously make your own notes, right? Not that they will be helpful for your PhD interview, but also they will be helpful for you in concept making and also facing some scientific interviews. अब आते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ में, दैट इज क्लोनिंग सर्व्स टू मेन पर्पसेस। First, it allows a large number of recombinant DNA molecules to be produced from a limited amount of starting material, right? जैसा कि हमारे केस में होता है, if you will take the example of curd, जब भी हम दही बनाते हैं, whenever we make curd, then what happens, हमारे पास starter होता है। starter में we have a little amount of the bacteria, little amount of lactobacillus lacti and also the other bacteria are also present there। तो वो छोटी सी पॉपुलेशन से what happens is, पहले बैक्टीरियाज के क्लोन्स बनते हैं और वो जो स्टार्टर है, देन दी स्टार्टिंग पॉपुलेशन कन्वर्ट्स द एंटायर मिल्क इनटू द कर्ड। सो हमारी क्लोनिंग क्या हो गई, पहला इट अलाउज लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल्स टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, बहुत कम, आप 2 नैनोग्राम दोगे उससे 100 नैनोग्राम बन जाएगा। तो at the outset, only a few nanograms of recombinant DNA may be available, but each bacterium that takes up a plasmid subsequently divides numerous times to produce a colony, each cell of which contains multiple copies of the molecule. तो हर बैक्टीरिया में वो आपका स्लाइट नैनोग्राम चला गया, हर बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, एंड इट विल एम्पलीफाई इट, राइट? उसके बाद आता है several micrograms of recombinant DNA can usually be prepared from a single bacterial colony. कितना बन रहा है? We have started with nanograms and now we have reached micrograms, representing a 1000-fold increase over the starting material. कितना ज़्यादा increase हो गया? 1000 times. If the colony is not used as a source of DNA but as an inoculum for a liquid culture, the resulting cells may provide milligrams of DNA, a million-fold increase in yield. This I would like to explain here. That is, they are saying कि अगर आप एक सिंगल सेल लेते हो, राइट? अगर आप एक सिंगल सेल लेते हो और इफ़ यू टेक अ कॉलोनी, राइट, इफ़ यू टेक अ कॉलोनी, तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। आप फर्स्ट में नोट करोगे, आई एम जस्ट रिसाइटिंग हियर, अगर आप सिंगल सेल लोगे तो देन देयर विल बी एन इंक्रीज फ्रॉम नैनोग्राम टू माइक्रोग्राम, राइट? बहुत इंक्रीज होगा, बट देयर विल बी अ स्लाइट इंक्रीज। रिलेटिवली जो ज़्यादा इंक्रीज होगा दैट विल बी फ्रॉम कॉलोनी। क्यों? क्योंकि कॉलोनी में यू ऑलरेडी हैव सम माइक्रोग्राम्स, ऑलरेडी आपके पास ज़्यादा DNA है, राइट? और उससे आप कितना बना सकते हो? उससे भी ज़्यादा, तो मिलीग्राम्स तक जा सकते हो, राइट? तो कॉलोनी में हमारे पास क्या होता है, कॉलोनी इज मेड अप ऑफ मेनी सिंगल सेल्स एंड एवरी सिंगल सेल कंटेन्स DNA।
तो अभी हमारे पास बहुत सारे डीएनएज हो गए, बहुत सारे डीएनए हो गए, राइट। तो कॉलोनी से हम जब एम्पलीफाई करेंगे तो वी कैन गेट रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू व्हेन वी स्टडी फ्रॉम दी when we use the single cells. Okay, now comes the highlighted wala part. In this way, cloning can supply a large amount of DNA needed for molecular biological studies of gene structure and expression. So अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फॉर जीन एक्सप्रेशन व्हेनेवर वी वांट कि हमारा प्रोटीन एक्सप्रेस हो, वी वांट, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि डीएनए बहुत कम अमाउंट में हो और आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा बन जाए. सम अमाउंट ऑफ इट मे बी इंक्रीज बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता. तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट के लिए व्हाट वी वांट कि हमारे पास डीएनए भी ज़्यादा हो, राइट. तो ये कह रहे हैं कि क्लोनिंग का जो बेसिकली फंक्शन है दैट इज टू सप्लाई स्टार्टिंग मटेरियल से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना, क्लोनिंग, राइट. अब आता है the second important function of cloning can be described as purification. I talked about purification and I asked questions on Instagram as well that what will be a contaminant for DNA, right? So RNA and protein, it is a subjective term. RNA and protein will act as a contaminant whenever we want pure DNA. So cloning also helps us in purification. How? The manipulations that result in a recombinant DNA molecule can only rarely be controlled to the extent that no other DNA molecule are present at the end of the procedure. So what do we want? We want a pure plasmid to be cloned. How? Say for example, there were so many, so you have cloned, right, and you have cloned this plasmid was containing a resistance for ampicillin, right, and then there was a plasmid which was present in the natural population and that contained tetracycline resistant, right. So now when you will do transformation, when you will insert it inside a bacteria, this might get also inserted because your bacteria has become competent. आपके बैक्टीरिया में pores form हो गए हैं तो it's very much likely कि आपका ampicillin resistance के साथ tetracycline resistance वाला plasmid भी enter कर जाए. Now what will happen कि आप जब selection करोगे, whenever you will do selection, यहाँ पे आप ampicillin plate करोगे, right? It doesn't have ampicillin resistance, so this bacteria will die. So in this way you can get a pure material during cloning. So this will also be useful. कैसे कि हमें pure material मिल सकता है. Okay, अब हम वापस से उस पे जाएंगे. That is, हमने इतना पढ़ लिया. Now I would like to ask one question from all of you. That is, just tell me, this is also a PhD interview का question. That is, how PCR is similar to cloning. So you will answer this question in comment section. I am writing in a very bad, my writing is very bad here because I do not have pen and I am writing with my finger. तो वो friction की वजह से my finger get heated up, तो वो इसलिए थोड़ा सा writing का issue है, but वो चल जाएगा because I am also reciting. तो PCR is similar to cloning. How will you justify this statement? I won't answer in the comment section. ठीक है, अब moving on. अब आते हैं हम यहाँ पे कि ये फिगर क्या बता रहा है. सी, यू हैव अ बैक्टीरिया, राइट, एंड देन देर आर सो मेनी single cell, there are so many plasmids inside it. So they are saying in the caption that it is a single cell containing multiple copies of a recombinant DNA molecule, right, because हमने insert कराया plasmid में and we allowed it to grow. हमने उस plasmid को insert करा दिया बैक्टीरिया में और हमने उसे grow करने को allow कर दिया. Growth to a colony, जब हमने colony में growth करा दी, right, तो हमारे पास provide several microgram of a recombinant DNA. हमें एक, मान लीजिए यहाँ पे as I told you कि यहाँ पे आपके पास हो सकता है नैनोग्राम रहा हो, राइट, दिस इज n. सो नैनोग्राम रहा हो और यहाँ पे माइक्रोग्राम में हो गया. क्यों? क्योंकि एक कॉलोनी आ गई, राइट. अब हमने क्या किया, इस कॉलोनी से हल्का सा अपने पाइपेट से उठाया. फॉर ऑल दोज हु हैव नेवर वर्कड इन अ लेबोरेटरी, हल्का सा आपने अपनी पाइपेट से टच किया, जस्ट यू हैव जस्ट टच द सरफेस, एंड तब आप क्या करोगे, उस पाइपेट को ट्रांसफर करोगे इधर, एंड एवरी बिट ऑफ इट टेक्स प्लेस इनसाइड व्हाट, हुड. तो वो एसेप्टिक एनवायरनमेंट में होता है सारा कुछ. उसके बाद जब आप इनोकुलेट कर दोगे इनटू 500 ml ऑफ लिक्विड ब्रॉथ, इंक्यूबेट फॉर 18 आवर्स, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, यू विल अलाउ इट. यू कैन नॉट एक्सटेंड इट आफ्टर देन इट्स incubation period. Why so? So again a question gets formed, that is, the question will be, right, the question would be, why you can't incubate your bacteria for longer period.
सो दिस एरो अबव मीन्स लॉन्गर, एरो डाउन मीन्स स्मॉलर। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ किया करिए सो दैट योर टाइम गेट्स सेव, ठीक है। तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते किसी भी बैक्टीरिया को उसके इंक्यूबेशन से पीरियड से ज़्यादा क्यों नहीं हम उसे ग्रो करा सकते? सो आई वॉन्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, प्लीज़ डू आंसर सच दैट आई गेट टू नो कि कौन कौन सीरियसली पढ़ रहा है, राइट। सो दिस इज क्लोनिंग कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एज दे हैव टोल्ड यू कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिलता है। एंड द सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स की प्योरिफिकेशन हो सके। उसके बाद आता है कि जब भी आप प्योरीफाई करते हो, वट एवर आई टोल्ड यू, लाइक अभी मैंने जो ब्लैक स्क्रीन पे बना के दिखाया, द सिमिलर थिंग दे आर टॉकिंग हियर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लाइगेशन। यू हैव an unligated vector molecule, right? You have that because आपके पास एक वेक्टर होगा एक वायल में एंड एक वायल में आपका जीन होगा, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे विद सर्टेन एंजाइम्स तब आपकी रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो अनलाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल है, जीन है, कुछ अनलाइगेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे, व्हेन यू विल अलाउ बोथ ऑफ देम टू गेट मिक्स्ड, तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। पहला कि वेक्टर खुद में सील हो जाए, क्योंकि वेक्टर के पास स्टिकी एंड्स है। मैंने स्टिकी एंड्स का प्रॉब्लम बताया था, आई टोल्ड यू हाउ टू रेक्टिफाई इट। अगर किसी को नहीं पता है तो गो टू 3rd चैप्टर एंड रीड इट अगेन, राइट। और उसके बाद मैंने दूसरा बताया था कि जब भी आप किसी अगर ऐड हो गया, दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज द डिजायर्ड थिंग, राइट, योर जीन गेट्स इंटीग्रेटेड इनसाइड द वेक्टर मॉलिक्यूल। एंड द थर्ड वन इज wrong recombinant DNA molecules. As I told you that there are so many prevalent bacteria in the atmosphere. अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, there is very much, it's highly likely that दूसरा बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है या दूसरे बैक्टीरिया का जो इंसर्ट है, फ्री डीएनए है, इट कैन एनकाउंटर योर वेक्टर। तो रॉन्ग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं। नाउ हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब दिस इज द थिंग, इफ समबडी आस्क्ड यू कि व्हाई टू प्योरीफाई, व्हाई टू प्योरीफाई, राइट, क्यों प्योरीफाई करना है? whenever you are doing cloning, why to purify? You'll say that there are 3 possibilities. There can be more than 3 possibilities, that your vector gets self-ligated, your desired recombinant molecule is in there, or the wrong recombinant DNA molecule gets formed. So your answer will be I can have like so many possibilities. So to rule out that the wrong insert doesn't get integrated with my vector, I will perform the process of selection, which is also which will lead to the purification of my plasmid, right? So the third thing is all circular molecules will be cloned. Yeah, so cell containing self-ligated vector, yeah, they are telling, see this one is the continuation of this one. So what we have said, हमें पता है कि what is transformation? Transformation is taking up of the naked DNA, right? So what will we do? हमने इसको we have inserted it to the plasmid and then we will do what? Transformation. हम इस DNA को ट्रांसफॉर्म करेंगे और एक बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। तो आप जो 3 चीज़ें हैं, अगर ऊपर वाले फिगर में आप देखो कि ये तीनों हैं, आपके पास एक ट्यूब में ये है, एक ट्यूब में यू हैव दिस वन, एंड थर्ड ट्यूब यू हैव दिस वन, राइट। नाउ व्हाट विल यू डू? यू विल एड इट टू, like you will via a protocol, of course you will insert it to bacteria, so all 3 of them can get inserted. अब आप इनकी जब प्लेटिंग कर देते हो in a plate, someday I'll show you that also, because I'll be making up a video on how things are performed in a laboratory. तो जब ये यहाँ पे आपने कर दिया प्लेटिंग, देन व्हाट कैन हैपन, दिस क्लोन कैन ऑल्सो ग्रो, दिस कैन ऑल 3 ऑफ देम कैन ग्रो। क्योंकि पहली चीज़, कुछ भी टॉक्सिक प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है, आपके वेक्टर में ही वो रेजिस्टेंस प्रेजेंट है जो आपकी प्लेट पे आपने प्लेट किया हुआ है। या फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड की बेसिक्स इसके, जब भी आप क्लोनिंग करते हैं तो यू प्लेट योर बैक्टीरिया ओवर अ प्लेट जिसमें कि आपका जो मीडिया होता है, राइट, सो देयर विल बी योर मीडिया, दिस इज योर कल्चर मीडिया, LB मीडिया होता है, राइट। उसके बाद देन द अदर थिंग विच इज प्रेजेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनदर थिंग इज व्हाट, दिस इज योर एंटीबायोटिक, राइट। तो जो भी रेजिस्टेंस आपकी वेक्टर में प्रेजेंट होता है, हम उसी रेजिस्टेंस की प्लेट पे अपने क्लोन्ड प्रोडक्ट को, अपने ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट को प्लेट करते हैं, राइट। तो वही वेक्टर, मैंने क्या बोला कि जो भी वेक्टर में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है वही एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। से फॉर एग्जांपल आपके वेक्टर में जो रेजिस्टेंस है दैट इज टेट, तो आप उसको किसकी प्लेट पे प्लेट करोगे? टेट्रासाइक्लिन की, राइट। तो अब अगर सेल्फ लाइगेटेड मॉलिक्यूल है, अगर सेल्फ लाइगेटेड मॉलिक्यूल है तो उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, वो इस पे ग्रो करेगा, डेफिनेटली ग्रो करेगा। उसके बाद आपका जो दूसरा है दैट इज
रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वाला करेगा क्योंकि वेक्टर प्रेजेंट है। अब जहाँ जहाँ वेक्टर प्रेजेंट है वो तीनों आपकी प्लेट पे ग्रो कर जाएगा, क्योंकि योर वेक्टर इज कंटेनिंग द कंसर्न्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और वही रेजिस्टेंस की प्लेट आपके पास है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, तीनों ग्रो करेंगे ही करेंगे। अब आपको इससे सिलेक्शन करना है कि यू वांट दिस वन ओनली। आप कैसे बाहर निकालोगे, राइट? तो ये हो जाएगा कौन सा प्रोसेस? प्योरिफिकेशन। क्लोनिंग इज एनालोगस टू विच प्रोसेस? प्योरिफिकेशन। आई कैन आस्क दिस इन क्विज on whatever, like on Telegram or Instagram, that how cloning is analogous to purification. I can give you 4 options. अगर उसमें से गलत होता है कि इसका, तो फिर I will not spare you, ठीक है? तो ये डेफिनेटली आपको याद रखना है कि कैसे क्लोनिंग प्योरिफिकेशन जैसा है। उसके बाद अब आपका जो ऊपर है वही थ्योरी में दिया हुआ है, दैट इज जो भी आपका मिक्सचर था उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। आइदर अनलाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अनलाइगेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, ये कहीं भी ग्रो नहीं होंगे, राइट? क्योंकि इनके पास रेजिस्टेंस नहीं है। देन वेक्टर मॉलिक्यूल दैट हैव रीसर्कुलाइज्ड विदाउट न्यू डीएनए फ्रेगमेंट, दैट इज सेल्फ लाइगेटेड। वही अगर उसमें स्टिकी एंड्स हैं तो वो स्टिकी एंड्स विल रीसील, वो रीसील हो जाएंगे और वो खुद से सेल्फ लाइगेशन शो करेगा। एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी द रॉन्ग इंसर्टेड डीएनए फ्रेगमेंट। सो वट एवर विल ग्रो ओवर योर प्लेट डिपेंड्स अपॉन योर वेक्टर। तो चाहे रॉन्ग डीएनए इंसर्ट आ जाए, आपका वेक्टर तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो कॉलोनीज आपकी प्लेट पे आएंगी। नाउ यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक कि आपका जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट था वो कौन सा था, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब अनलाइगेटेड मॉलिक्यूल्स रेयरली कॉज अ प्रॉब्लम बिकॉज इवन दो दे मे हैव टेकन अप बाय बैक्टीरियल सेल्स ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विल दे बी रेप्लिकेटेड। ऑफ कोर्स दैट इज द थिंग कि आपके जो भी मॉलिक्यूल अनलाइगेटेड हैं, जो भी मैंने बोला कि आपका डीएनए जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ जाके रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता, राइट? उसके पास खुद आपका एक इंसर्ट जिसमें कोई ओराई भी नहीं है, कोई ओरिजिनल रेप्लिकेशन नहीं है, तो वो कैसे रेप्लिकेट करेगा? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, सी यू हैव दिस डीएनए मॉलिक्यूल, राइट? और आपके पास प्लस आपके पास क्या होगा? वेक्टर होगा, वेक्टर होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, आपका ये यहाँ पे और आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको सिंबॉलिक समझिए कि मैं एक ही लाइन से दिखा रही हूँ, राइट? है वो डबल स्ट्रैंडेड ही। एंड देन व्हाट कैन ऑल्सो हैपन, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी कुड बी कि यही डीएनए इसी तरीके से सेल के अंदर चला जाए। नाउ दे आर सेइंग कि दिस इट इज़ हाईली अनलाइकली कि आपका ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो रेप्लिकेट करे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इट लैक्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये वाला तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें सिलेक्शन में इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, बिकॉज दिस वन कैन नॉट रेप्लिकेट। तो ये तो अपने आप ही हमें डिटेक्ट नहीं होगा और हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब आता है कि सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर मॉलिक्यूल्स एंड इनकरेक्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वेक्टर वहाँ पे भी है। आई टोल्ड यू कि हमें उन तीनों में से ही स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि जो करेक्टली लाइगेटेड है, इनकरेक्टली लाइगेटेड एंड द सेल्फ लाइगेटेड ones, right? Because they are replicated just as efficiently as the desired molecule. So whenever you will be asked that, see, one second. So whenever you will be asked a question like you have 3 possibilities, you are given with 3 possibility, all 3 of them you have to assume all 3 of those which I have taught you. So out of these, which will cause a problem to you, 1, 2 or 3, which one is a problem for you? So you can say that 1 and 3 are a problem for you because you want to screen out 2, right? So 1 and 3 will be problems for you. अब आते हैं हमारे पास कि I've read this, then however purification of desired molecule can still be achieved through cloning because it is extremely unusual for any cell to take up more than one DNA molecule. अब this is also right. They are saying कि एक से ज़्यादा DNA molecule लेना is highly unlikely, तो हम purification ऐसे भी कर सकते हैं। Each cell gives rise to a single colony, so each of the resulting clones consist of cells that all contain the same molecule. Of course, different colonies contain different molecules. Some contain desired recombinant DNA molecule, some have different recombinant molecule, and some contain self-ligated. घुमा फिरा के सब वही बात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? Therefore becomes a question of identifying the colonies that contains correct recombinant plasmids. I think आपको भी यही लग रहा होगा कि अब हम करेक्ट तक कैसे जाएंगे। So I told you earlier, मैंने दिखा भी दिया कि आपको एंटीबायोटिक सिलेक्शन कर सकते हो, राइट? लेकिन वो धीरे धीरे आपको बुक में ऐसे पहुँचाएंगे आपको वहाँ तक। तो दिस चैप्टर इज कंसर्न विद, अब बता रहे हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, इन विच प्लाज्मिड एंड फाज वैक्टर्स एंड रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स डेराइव फ्रॉम देम आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैक्टीरियल सेल्स. During the course of chapter, it will become apparent that selection for colonies containing recombinant molecules
as opposed to colonies containing self-ligated vector is relatively easy. Of course, that is the thing. They are saying कि जिसमें recombinant molecule होता है उसके comparison में अगर हम self-ligated vector को देखें, let me take different color, अगर हम self-ligated vector को देखें, this is green in color, तो this one is relatively more easy, right? क्यों? क्योंकि आपके पास देखो, ये आपका पार्ट बी में एक क्वेश्चन भी आया CSIR का कि अगर आपको ऐसा कुछ पता करना है तो आप वेक्टर स्पेसिफिक और आपका इंसर्ट स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ कर सकते हो PCR में, राइट? लेकिन अगर आपका सिर्फ वेक्टर है, सिर्फ वेक्टर प्रेजेंट है, तो उसमें तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे कंफर्म कर पाओ, तो इट इज़ रिलेटिवली मोर ईजी कि आप अपना रिकॉम्बिनेंट पता कर लो, राइट? अब आता है द मोर डिफिकल्ट प्रोपोजिशन ऑफ हाउ टू डिस्टिंग्विश क्लोन्स कंटेनिंग द करेक्ट रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑल द अदर रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स विल बी टैकल्ड इन चैप्टर 8. चैप्टर 8 में हम दूसरी पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे, या हम पढ़ेंगे कि कैसे आपके खाली वेक्टर और आपके रिकॉम्बिनेंट्स को पहचानना है. The uptake of DNA by bacterial cell. I know many of you know कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, but I definitely will get some insight. थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा, थोड़ा ऐसा पता चलेगा that you even if you retain 10% of it, तब भी आपके questions हो जाएंगे जो भी आपसे पूछे जाएंगे या फिर जो भी एग्जाम में आते हैं. तो मोस्ट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर एबल टू टेक अप DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम द मीडियम इन विच दे ग्रो, राइट? ये तो हमें भी पता है कि बहुत सारी स्पीशीज में एक कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी मीडियम में रख दो, उनकी वॉल में हल्का सा पोर बनेगा और वो इजीली दे कैन टेक इट, राइट? ऑफन DNA molecule taken up in this way will be degraded, but occasionally it is able to survive and replicate in the host cell. You all must have studied in your RDT की fate होता है, जो भी आपका exogenous आता है, it has a fate. Either it gets integrated or it gets degraded, right? Or it resides, like merozygote case बना देता है. तो very less likely कि आपका वो reside करे, degrade हो जाता है mostly cases में. तो that is what they are saying in this highlighted line. In particular, this happens if the DNA molecule is a plasmid with an origin of replication recognized by the host. अगर वो सर्वाइव करता है और होस्ट में रह जाता है, इट हैपन्स ओनली व्हेन आपका होस्ट रिकॉग्नाइज करे दैट ओके द DNA मॉलिक्यूल विच इज कमिंग एंड ट्राइंग टू इंटीग्रेट विद मी has a DNA like replication origin and it can replicate when it is bound to the vector, it can replicate, right? तो 5.1.1 talks about hindsight, talks about your competence only. तो ये बोल रहा है कि not all species of bacteria are equally efficient at DNA uptake. DNA uptake कर सकते हैं but they all are not equally efficient कि हाँ उसी रेट से कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ही DNA uptake कर पा रहे हैं. See, in nature, transformation is probably not a major process by which bacteria obtain genetic information. This is reflected by the fact that in the laboratory only a few species, notably members of Bacillus and Streptococcus, can be transformed with ease. So the line says कि आपका naturally जो transformation है वो बहुत ज़्यादा prevalent phenomenon नहीं है, क्योंकि लैब में भी बहुत ही कम organisms हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. तो लैब में अगर बहुत कम organism है जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो the idea of मैनिपुलेशन या आइडिया ऑफ डूइंग एनीथिंग इनसाइड लैब कम्स फ्रॉम नेचर ओनली, है ना? तो नेचर में अगर आपके पास सिर्फ बेसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस है जिनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो लैब के अंदर भी होंगे. क्लोज स्टडी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स हैव रिवील्ड दैट दे possess sophisticated mechanism for DNA binding and uptake. अब हमने देखा कि what do they have which the others lack. others मतलब one which cannot be transformed, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, उनमें क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है that these organism have. तो क्या पता चला हमें कि इनके पास कुछ ज़्यादा ही सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स हैं फॉर DNA बाइंडिंग एंड अपटेक, मतलब दे हैव सम मैकेनिज्म एसोसिएटेड टू इट, मतलब वो प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं. अब मोस्ट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई हो गया, इकोलाई टेक अप ओनली लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ DNA अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. अब आपको पता चलेगा किस चीज़ का सिग्निफिकेंस, ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस. सी 28 मिनट्स अभी हो गया है, सो आई वांट टू एंड दिस 5.1 सेक्शन सच दैट कि हम फिर रिकॉम्बिनेशन पढ़ें, नहीं रिकॉम्बिनेंट्स की स्क्रीनिंग पढ़ें, ठीक है? तो इकोलाई बहुत नॉर्मल कंडीशंस में क्या कर सकता है, लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ DNA ही ले सकता है. इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म दीज स्पीशीज एफिशिएंटली, द बैक्टीरिया हैव टू अंडरगो some form of physical and or chemical treatment that enhances their ability to take up DNA. Cells that have undergone this treatment are said to be competent. अब आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है that why to do this competent cell preparation. हम लैब में competent cells बनाते हैं, why to do this, इतना tedious task क्यों करना है? नेचर में competence होगी तो, नेचर में हो तो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, then you will say कि अगर if I want my whatever the product I want, मतलब इवेंचुअली जो भी मुझे चाहिए, if I want it in certain quantity, तो हम एक efficient उसका क्लोनिंग चाहेंगे. एंड फॉर दैट एफिशिएंट क्लोनिंग वी वांट कि पहले तो वो DNA इंसर्ट हो आपके बैक्टीरिया में या ऑर्गेनिज्म में. तो उस ऑर्गेनिज्म को पहले हमें बनाना पड़ेगा कि इट विल एक्सेप्ट इट, वो भी एफिशिएंटली एक्सेप्ट करे. ये भी नहीं कि
एक से 2 मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर रहे हो और फिर हाई कॉपी नंबर रेप्लिकेट भी ना हो। तो ऑल दोज डीएनए ट्रीटमेंट्स, ऑल दोज ट्रीटमेंट जो कि आपके सेल को क्या बनाती हैं, इस लायक बनाती हैं कि इट बिकम्स केपेबल ऑफ टेकिंग दी डीएनए, उन सबको बोलते हैं हम क्या, कॉम्पिटेंट सेल प्रेपरेशन वाली प्रोसेस। तो अब हमें देखना है क्या, हेल्प ऑफ अ डायग्राम, जो प्रोसेस करते हैं उन्हें पता होगा। सो वी हैव यू हैव योर नॉर्मल बैक्टीरिया एंड देन वी डू व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट एंड आई गेस रुबीडियम क्लोराइड ट्रीटमेंट भी करते हैं हम, वो हमें आगे इस बुक में ही पता चल जाएगा। तो जो आपका प्लाज्मिड है, जो भी आप चाह रहे थे कि आपका ये है आप बैक्टीरिया, राइट, ये आपका कॉम्पिटेंट सेल है जिसमें कि आप चाहते हो कि आपका प्लाज्मिड इंसर्ट हो जाए। तो आपका प्लाज्मिड जो है कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट के बाद देखिए यहाँ पे बाउंड हो गया, अब ये यहाँ पे चिपक गया आके। तो अब क्या होगा, अब इट विल बी रिलेटिवली ज़्यादा ईजी। अगर आप किसी के पीछे भागो, अगर आपने उसका शर्ट भी पकड़ लिया या उसका हैंड भी पकड़ लिया, एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, आपने उसका फिंगर, हेयर, कुछ भी ग्रैब कर लिया, इट विल बिकम रिलेटिवली ईजी कि आप उसे पुश कर लो, पुल कर लो अपनी तरफ, ठीक है। तो अब ये प्लाज्मिड जब बाउंड हो गया है सेल के एक्सटीरियर में, तो हम क्या करते हैं, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट शॉक देते हैं। फिर हीट शॉक को भी माना जाता है कि इट फॉर्म्स ईजिली वहाँ पे पोर बना देता है, पोर बन के प्लाज्मिड आपका अंदर आ जाता है एंड मेम्ब्रेन का क्या होता है, मेम्ब्रेन गेट्स रीसीड। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन के पास क्या है, लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका बाइंडिंग एंड अपटेक ऑफ डीएनए बाय अ कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल। अब सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉम्पिटेंस पढ़ सकते हो, फिर कुछ कॉम्पिटेंस का एक बड़ा सा न्यूक्लियोटाइड का फैक्टर हो सकता है, आप वो फैक्टर देख सकते हो। देन कम्स प्रेपरेशन ऑफ कॉम्पिटेंट इक्वलाइज सेल्स। कैसे बनाते हैं भाई लैब में, as with many breakthroughs in recombinant DNA technology, key development as far as transformation is concerned occurred in early 1970s when it was observed that E. coli cells that had been soaked in an ice cold solution were more efficient in DNA uptake than unsoaked cell। तो 1970s में हमें ये पता चल गया कि अब E. coli cells को ice cold मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडे सॉल्ट सोल्यूशन में डालते हैं तो बहुत इजीली डीएनए अपटेक करते हैं एज कम्पेयर टू ऐसे सेल्स जिनको हमने आइस ट्रीटमेंट नहीं दिया है, यानी कि आइस कोल्ड सॉल्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया है। तो दोनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस होगी, दैट मीन्स वी विल हैव आइस भी इंपॉर्टेंट होगी और सॉल्ट सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट लाइन इज सेइंग कि अ सोल्यूशन ऑफ 50 मिलीमोलर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये हो गया आपका सॉल्ट, इज ट्रेडिशनली यूज्ड ऑल्दो अदर सॉल्ट जैसे कि रुबीडियम क्लोराइड, एज आई टॉक कि रुबीडियम क्लोराइड भी यूज करते हैं, बट रुबीडियम की कुछ कंसर्न लैब में यूज करने के, दैट्स वाई वी यूज व्हाट, कैल्शियम क्लोराइड इजीली यूज करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड यूज करते हैं, यही जो लिक्विड है दैट इज यूटिलाइज्ड इन योर ट्रांसफॉर्मेशन बफर। ट्रांसफॉर्मेशन बफर भी यही बनाता है जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो। अब आता है कि एग्जैक्टली वाई दिस ट्रीटमेंट वर्क्स इज नॉट अंडरस्टूड, ऑल्दो इट हैज़ बीन अंडरस्टूड टिल नाउ कि कैसे काम करता है। पॉसिबली तब इन्होंने पॉसिबिलिटीज दी है क्योंकि वी आर रीडिंग फ्रॉम 6th एडिशन। तो पॉसिबली CaCl2 कॉजेज द डीएनए टू प्रेसिपिटेट ऑनटू द आउटसाइड सेल्स। क्या करता है, बोल रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट से आपका डीएनए प्रेसिपिटेट होकर सेल के बाहर चिपक जाता है। परहैप्स द सॉल्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सम काइंड ऑफ चेंज इन द सेल वॉल दैट इम्प्रूव्स सेल बाइंडिंग। जबकि फॉर्मर इज ट्रू कि आपका जो CaCl2 के ट्रीटमेंट से वो वॉल के ज़्यादा पास आ जा रहे हैं। एनी केस सोकिंग इन कैल्शियम क्लोराइड इफेक्ट्स ओनली डीएनए बाइंडिंग, नॉट द एक्चुअल अपटेक इनटू द सेल, सो दैट कैन बिकम अ फ्रेम। सीधा ही CSR में ये आपका एक फ्रेम्ड क्वेश्चन बनता है कि जो आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड एंड उसके बाद आपके ऑप्शंस में आ सकता है कि इट इफेक्ट्स डीएनए बाइंडिंग ऑल्सो द एक्चुअल अपटेक, इट इफेक्ट्स ओनली डीएनए बाइंडिंग बट नॉट द एक्चुअल अपटेक। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, द करेक्ट ऑप्शन विल बी इट इफेक्ट्स ओनली डीएनए बाइंडिंग एंड नॉट द एक्चुअल अपटेक इनटू द सेल। अब आपको एक चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑथेंटिक बुक्स से आपके जो क्वेश्चंस होते हैं दे कम डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सो द पीपल हु आर करेंटली इन मास्टर्स, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इट भी रिलेटिवली अच्छा होगा अगर आप ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जाओ। When DNA is added to treated cells, जब भी हमने DNA को डाल दिया, क्या कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटेड सेल्स और सॉल्ट में आइस सोक्ड सेल्स, it remains attached to the cell exterior and is not at this stage transported into the cytoplasm। अभी सिर्फ वो attached है। See, cytoplasm में मूवमेंट मैंने आपको ऊपर के फिगर में भी दिखा दिया, that happens only when we do heat shock। heat shock करते हैं लैब में, I used to do, मैंने करती हूँ 1 मिनट 30 सेकंड का, तो 2 मिनट का हीट शॉक दिया जाता है। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ डीएनए इनटू कॉम्पिटेंट सेल्स इज स्टिमुलेटेड बाय ब्रीफली रेजिंग द टेम्परेचर टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वंस अगेन ये बोल रहे हैं कि इसका भी हमें रीजन नहीं पता है। आपकी जो इजी माइग्रेशन है वो 42 पे, अब 42 पे ही क्यों किया? अगर आप में से कोई मुझे इसका आंसर दे दे तो आई वुड डेफिनेटली थिंक कि वो इंटरेस्टेड है रिसर्च में। क्या कि वाई द टेम्परेचर
Why? The temperature was maintained at 42 ओनली. जब हीट शॉक कर रहे थे, जब आपका डीएनए इंसर्ट हो गया सेल के अंदर, वाई द टेम्परेचर वॉज चोजन टू बी 42 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑफ कोर्स आई विल गिव द आंसर, बट आपको भी देना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे. अब आते हैं हम सिलेक्शन वाले स्टेप पे. अब हमने कर दिया, डाल दिया उसे अंदर. अब है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल्स इज एन inefficient procedure. However, carefully the cells have been prepared. चाहे जितना बोल रहा है, ये आपको डरा रहा है बेसिकली कि कितना भी केयरफुली आप बनाओ, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है. मतलब आपको एक रेशियो लेना पड़ता है आपके वेक्टर को और आपके इंसर्ट को. सॉरी, आपका जो क्लोन्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और प्लस आपके जो कॉम्पिटेंट सेल्स है. ऑल्दो 1 नैनोग्राम ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर कॉल्ड PUC8, PUC8 बोल सकते हो, PUC8 बोल सकते हो. PUC8 को आप पढ़ोगे आई गेस नेक्स्ट वाले चैप्टर में. कैन यील्ड 1000 to 10,000 ट्रांसफॉर्मेंट्स. दिस रिप्रेजेंट द अपटेक ऑफ ओनली 0.01% ऑफ ऑल द अवेलेबल मॉलिक्यूल. सिर्फ एक ही 1000 में एक बार है. अगर 1 नैनोग्राम की बात करें हम, तो बोल रहे हैं कि 1 नैनोग्राम से 1000 या 10,000 ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल सकते हैं. तो बहुत कम ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी है. फर्दरमोर 10,000 transformations is only a very small proportion of the total number of cells that are present in a competent culture. मतलब आपके पास 1,00,000 सेल्स होते हैं. टू बी वेरी 10,000 ट्रांसफॉर्मेंट्स की बात कर रहे हैं, 1,00,000 सेल्स होते हैं, 1,00,000 एंड बियॉन्ड सेल्स होते हैं आपके कॉम्पिटेंट कल्चर में. तो उसमें से 10,000 पाना इज वेरी लेस. This last fact means that some way must be found to distinguish a cell that has taken up a plasmid from the many thousand that have not been ट्रांसफॉर्म्ड. यानी कि जब आप इसको वापस से प्लेट करोगे ऑन अ प्लेट, अगर उसका मेरे को मौका मिला तो आई विल शो यू. तो जब आप इसको वापस से, सो आई विल एक्सप्लेन हियर ओनली. अगर आप वापस से प्लेट करते हो, आपने क्या किया, आपने अपना इंसर्ट ले लिया प्लस आपने अपना कॉम्पिटेंट सेल ले दिया, राइट? और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपका बैक्टीरिया के अंदर चला गया. अब आपने इस बैक्टीरिया को क्या किया, अपनी जो पाइपेट है उसकी टिप की हेल्प से स्प्रेड कर दिया एक प्लेट पे, राइट? स्प्रेड कर दिया. फिर आपने क्या किया, उसको इंक्यूबेट कर दिया. जब आपने उसे इंक्यूबेट किया, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉलोनीज. अब आपको क्या मिलेंगी यहाँ पे. नेक्स्ट डे आप आए, नेक्स्ट डे आपने देखा कि आपके पास बहुत सारी कॉलोनीज आ गई हैं, राइट? तो जब बहुत सारी कॉलोनीज आई हैं तो सारे तो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे नहीं. नाउ वी हैव टू सी कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है. इतने सारों में अब हमें क्या करना है, स्क्रीनिंग करना है. तो डैट विल बी मच डिफ़िकल्ट. क्यों? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन साइज़ बहुत बड़ा है. तो वो बोल रहा है कि कुछ ना कुछ तरीका तो होगा कि हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर पाएँ फ्रॉम दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. So uptake and stable retention of plasmid is usually detected by looking for expression of the genes carried by the plasmid. कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इकोलाई सेल्स नॉर्मली सेंसिटिव टू ग्रोथ इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हम सिलेक्शन में हमेशा एंटीबायोटिक ही एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट? तो बोल रहा है कि इकोलाई नॉर्मली एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होता है. हाउएवर सेल्स दैट कंटेन द प्लाज्मिड PBr322 which was one of the first cloning vectors to be developed back in 1970s are resistant to these antibiotics. I think ये DBT के क्वेश्चन में मैंने देखा था कि which one was the first plasmid that was developed. तो वो क्या था आपका PBr322, राइट? तो PBr322 सक्सेसफुली यूज भी हुआ. क्यों? दिस इज बिकॉज PBr322 कैरीज 2 सेट ऑफ जीन्स. एक जिससे बीटा लैक्टमेज एंजाइम बनता है दैट मॉडिफाइज एम्पिसिलिन इनटू अ फॉर्म दैट इज नॉन टॉक्सिक टू द बैक्टीरियम. यानी कि जो कि पेनिसिलिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. पेनिसिलिन एम्पिसिलिन ये सब एक ही फैमिली के हैं. एंड सेकेंड सेट ऑफ जीन्स दैट कोड्स फॉर एंजाइम दैट डिटॉक्सिफाई टेट्रासाइक्लिन. यानी कि दोनों के जीन्स प्रेजेंट है इसके पास, एम्प का भी और टेट का भी. आफ्टर अ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट विद PBr322 सिर्फ वही इक्वलाइज सेल्स बचेंगे जिसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन था, राइट? रेजिस्टेंस वाले ही एबल होंगे जो कॉलोनी बना सकें. उसके बाद नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो कि एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हैं, वो दोनों का डेथ हो जाएगा. तो इजीली यहाँ पे तो हमने क्या किया कि ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, राइट? किस बेसिस पे कर लिया? क्योंकि PBr322 जीन के पास आपके पास 2 सिलेक्शंस थे. एक था टेट और एक था एम्प रेजिस्टेंस था और टेट्रासाइक्लिन था. तो अगर आपके बैक्टीरिया में भी ये होंगे तो वो ग्रो करेंगे, अगर सेंसिटिव होंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी. ये देखिए यहाँ पे इनने एग्जाम्पल में दिखा भी दिया है, तो हम भी देख लेते हैं भाई. तो नॉर्मल इकोलाई सेल है जिसमें कि अभी तक कोई प्लाज्मिड नहीं है, और एक इकोलाई सेल है जिसमें कि PBr322 प्लाज्मिड्स हैं.
ठीक है। जब इनने कॉलोनी प्रोड्यूस की PBr 322 वाले प्लाज्मिड्स में आपके पास एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों का रेजिस्टेंस था, इसलिए हमने अपने अगार में क्या डाल दिया, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों। जब हमने एम्पिसिलिन, हाँ हम 3 प्लेट्स भी बना सकते हैं, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एंड एम प्लस टेट की। कैसे बनाएंगे भाई, ये हो गई मेरी एम्प की प्लेट, ये हो गई मेरी टेट्रासाइक्लिन की प्लेट, ये हो गई एम्प प्लस टेट की प्लेट, ठीक है। तो हम 3 प्लेट्स भी बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से ग्रो कर रहे हैं, अगर ग्रो करेंगे तो वो हो जाएंगे आपके रेजिस्टेंट, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन बन जाता है। हाँ, ये अभी आपको आगे दिखाएंगे कि क्या किस फिनोमेना की बात कर रहे हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही आपका प्लाज्मिड बना, उस प्लाज्मिड में जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा। दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वॉट एवर एंटीबायोटिक वी स्टडी एज, ऊपर जिसके रेजिस्टेंस लगा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वैसे ही रेजिस्टेंट प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम इंक्यूबेशन करते हैं उसको फॉर 1 आवर। उस इंक्यूबेशन में उसके नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स बढ़ जाएंगे। इसको, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री फॉर 1 आवर बिफोर प्लेटिंग आउट improves the survival of transformants on selective medium because the bacteria have had time to begin synthesis of the antibiotic resistance enzyme। अब मैं अगर आपको यहाँ पे पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूँ, जिसने अगर लैब में नहीं किया है, तो जो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कौन सा बोला जाता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं हम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसीजर अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अपने दोनों यानी कि वेक्टर प्लस कॉम्पिटेंट सेल इनको मिक्स कर दिया। आपने इनको मिक्स करा तो आपने इसको आइस पे रखा फॉर हाउ मच टाइम, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के लिए आपने इसको आइस पे रखा। देन व्हाट यू विल डू, मतलब ये दोनों मिक्स हो गए, यहाँ पे ये दोनों मिक्स हुए, बफर डाला जाता है इसमें, ट्रांसफॉर्मेशन बफर। आई हैव नोटिफाइड एज 3, ट्रांसफॉर्मेशन बफर 3। उसके बाद जब हमने ये ऐड कर दिया, यानी कि आपके कॉम्पिटेंट सेल्स में अब आपका इंसर्ट ऐड हो गया होगा। अब आप क्या करोगे, इनको कोल्ड शॉक दोगे पहले, जो कोल्ड शॉक दोगे। जो भी आपका CaCl2 की बात हो रही थी ना पहले की शुरुआत में, कैल्शियम क्लोराइड दिया जाता है सो दैट इट गेट्स बाइंड, तो TB3 में वो प्रेजेंट होता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों प्रेजेंट होता है। तो कोल्ड शॉक दोगे, कोल्ड शॉक आपने दे दिया, ओके। जैसे आपने कोल्ड शॉक दिया, उसके ये पूरा प्रोसेस था, इसी को बोलेंगे कोल्ड शॉक। उसके बाद आप क्या दोगे, हीट शॉक दोगे। हीट शॉक मैंने बता दिया कि मैं 1 मिनट 30 सेकेंड सब अपना स्टैंडर्डाइज करके रखते हैं, और 2 मिनट का भी हीट शॉक दे सकते हो। हीट शॉक जब आपने दे दिया, आई हैव टू इरेज दिस, आपने हो सकता है इतना नोट कर लिया हो। अब पढ़ते हैं कि हमने जब हीट शॉक दे दिया, यानी कि हीट शॉक दिया, ठीक है। अब हीट शॉक के बाद क्या हुआ होगा, पहले जब आपने TB3 ऐड किया था, यानी कि सॉल्ट सोल्यूशन ऐड किया था, तो उसकी मेम्ब्रेन पे मोबिलाइज हो गया। हीट शॉक के बाद वो DNA एंटर कर गया अब आपके इकोलाई में। अब आप क्या चाहते हो कि जब भी आपका जो भी DNA एंटर किया हुआ है, मान लीजिए ये वेक्टर मॉलिक्यूल है, इस वेक्टर मॉलिक्यूल में यू हैव दिस इंसर्ट एंड वेक्टर विल हैव सम रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो यू विल हैव सम रेजिस्टेंस जीन एंड यू वांट दैट जीन टू सिंथेसाइज व्हाट, प्रोटीन्स, राइट। सो प्रोटीन विल बी फंक्शनल, जैसे पेनिसिलिन में जो आपका फंक्शनल प्रोटीन होता है दैट इज बीटा लैक्टेमेज। अब ये प्रोटीन जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बने, उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्यूबेट। अब हम क्या करेंगे, अपने जो आपकी ट्यूब में सब कुछ पड़ा हुआ है उसे इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। हम इंक्यूबेट करेंगे तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंट जीन विल इंक्रीज, नंबर ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स विल इंक्रीज एंड हेंसफोर्थ आपका प्रोटीन भी बढ़ेगा। प्रोटीन बढ़ेगा तो आपके जितने भी DNA जिनमें आपका रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो सब बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने इंक्यूबेशन हो गया, यानी कि 1 आवर आपका ओवर हो गया, 1 आवर ओवर हुआ, राइट। इसके बाद आपको अपना अगार प्लेट लेना है। इस अगार प्लेट में यू विल हैव योर मीडिया एज वेल एज, क्या बताया था मैंने, सब अपनी जगह ड्रॉ करना, क्या बताया था, जो स्मार्ट होगा वो पहले ड्रॉ कर लेगा। दिस विल बी योर अगार, और प्लस मैंने बताया था कि इसमें होगा आपका एंटीबायोटिक, ठीक है। अब इसमें और क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप लाओगे अपने बैक्टीरिया को, जो भी आपने किए थे ट्रांसफॉर्म, जो भी आपके ट्यूब में प्रेजेंट थे, अब उस बैक्टीरिया को यहाँ पे स्प्रेड कर दोगे, ठीक है। फाइनली आपने स्प्रेड कर दिया और आप इसको फिर से इंक्यूबेट करके दूसरे दिन आके नेक्स्ट डे चेक करोगे, तो जिसमें आपका रेजिस्टेंस होगा वो ग्रो करेगा। तो अब आप आई होप ये समझ गए होगे कि आपने कैल्शियम क्लोराइड क्यों डाला,
ठीक है, आपने हीट शॉक क्यों दिया, हीट शॉक दे दिया, उसके बाद इसमें प्लेटिंग कर दी, हीट शॉक के बाद, हाँ हीट शॉक के बाद उसको इंक्यूबेट फिर से क्यों किया। तो अब आता है लास्ट, इस सेगमेंट का लास्ट, दैट इज most plasmid cloning vectors carry at least one gene that confers antibiotic resistance on host cell with selection, ताकि सिलेक्शन ईजी हो सके उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई एंटीबायोटिक होता है। बेयर इन माइंड हाउएवर दैट रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक इज नॉट ड्यू merely to the presence of the plasmid in the transformed cell. The resistant gene on plasmid must also be expressed so that the enzyme that detoxifies the antibiotic is synthesized. So again a question becomes, कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा, but the question is like you have this thing, they are saying that, say for example you have a condition, so you did all the experiment carefully and now nothing grows here, right, nothing grows. When you come back after one day you see that nothing grows, no colony appears over your plate. So which of this step was omitted by you, what did you forget? So highly likely that what did you forget, you forget to incubate this. Why? That's what they have discussed it. You have forgotten to incubate it. उन्होंने बोला आपको कि अगर आप इंक्यूबेट करते हो देन ओनली जो भी आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दिस गेट्स एक्सप्रेस्ड, राइट, दिस गेट्स एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन यू इंक्यूबेट. आप इंक्यूबेट करोगे वो जीन एम्पलीफाई होगा, यानी कि वो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो प्लाज्मिड एम्पलीफाई होगा, जितना ज़्यादा एम्पलीफाई होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन बनेगी. मान लीजिए आपके 10 मॉलिक्यूल्स हैं, 10 से आपने उसे इंक्यूबेट कर दिया, इट बिकेम 1000, तो 1000 जो है वो 1000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. अब इजीली नेक्स्ट डे वो ग्रो कर सकते हैं क्योंकि आपके मीडियम में एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, उस एंटीबायोटिक को क्या करेंगे वो डिग्रेड कर पाएंगे. अब आता है एक्सप्रेशन ऑफ द रेजिस्टेंट जीन बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट विल बी अ फ्यू मिनट्स बिफोर द सेल कंटेन्स इनफ ऑफ द एंजाइम टू बी एबल टू विथस्टैंड द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द एंटीबायोटिक. अब इस बात को एकदम ध्यान से समझना कि जो भी एंटीबायोटिक डाल के आपने अपना मीडियम बनाया है उसका कुछ कंसंट्रेशन है, राइट, इट हैज़ सम कंसंट्रेशन एंड नाउ यू वांट कि आपका बैक्टीरिया उस पर ग्रो करे, तो आपके बैक्टीरिया को उस कंसंट्रेशन को बाईपास करना पड़ेगा. से फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मीडियम में 1 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर के हिसाब से एंटीबायोटिक डाल दिया, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है. अगर इतना एंटीबायोटिक डाल दिया तो अब आप चाहते हो कि आपका जो बैक्टीरिया है वो भी उसके 1 माइक्रोलीटर के टाइटर में 1 माइक्रोग्राम एंटीबायोटिक बनाए, तो उसके लिए वी विल हैव टू गिव इट टाइम. तो कितना टाइम दे सकते हैं हम उसको, उसकी जो जनरेशन टाइम है उस हिसाब से 20 मिनट का जनरेशन टाइम है इकोलाई का, तो हम उस हिसाब से अगर 1 घंटे उसको रख देंगे तो वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे मल्टीप्लाई कर जाए. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन समझ में आया होगा. उसके बाद आते हैं, फॉर दिस रीजन द ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया शुड नॉट बी प्लेटेड ऑन टू द सेलेक्टिव मीडियम इमीडिएटली आफ्टर द हीट शॉक ट्रीटमेंट. बता दिया मैंने कि कौन सा स्टेप ऑमिट हो सकता है, तो यही स्टेप कभी नहीं भूलना है कि इमीडिएटली आपने प्लेट कर दिया, पहले आप उसे इंक्यूबेटर में रखोगे, बट फर्स्ट प्लेस्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मीडियम इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक एंड इंक्यूबेटेड फॉर अ शॉर्ट टाइम. येस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप इसको इंक्यूबेट करने जा रहे थे, इंक्यूबेटर आपके ओवन जैसा ही होता है, तो अगर आप इस इंक्यूबेटर में रखने जा रहे थे तो ऐसा मत कर देना कि जो आपकी वायल है उसमें आपका सारा मटेरियल प्रेजेंट है. अब अगर आप इसमें एंटीबायोटिक यहीं पे डाल दोगे तो इन सब की तो डेथ हो जाएगी. क्यों? क्योंकि दे आर अभी उनका ट्रांजिएंट स्टेज है, अभी वो एंटीबायोटिक बना रहे हैं, हो सकता है उतना एंटीबायोटिक हो ही ना, तो आप इन सबको मार दोगे. तो क्या करना है, वहाँ पे से इस एंटीबायोटिक को हटा देना है, एंटीबायोटिक नहीं डालना है और इसको डायरेक्टली प्लेट कर देना है. अब हम क्या करेंगे, पहले नहीं, इसको डायरेक्टली प्लेट नहीं करना है, इंक्यूबेट करना है फॉर 1 आवर एंड देन ओनली प्रोसीड फॉर व्हाट, प्लेटिंग. ठीक है, तो अब समझ गए कि ट्रबल शूटिंग कैसे होगी अगर आपके एक्सपेरिमेंट नहीं आ रहा है. तो मे बी पॉसिबल कि आप भूल गए, वैसे आप नहीं भूलोगे इसको. तो प्लाज्मिड रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन कैन देन गेट स्टार्टेड so that when these cells are plated out and encounter the antibiotic they will already have synthesized sufficient resistance enzymes. ये मैंने बता दिया कि क्या है, कि ये क्या बोलना चाह रहा है. सो ये बोल रहा है कि आप अप्रोप्रिएट टाइम दो कि वो रेजिस्टेंट जीन्स को कॉम्बैट करने के लिए, फाइट करने के लिए अपने खुद का एंटीबायोटिक सिंथेसाइज कर लें. अब हम इसके दूसरे वाला किस में पढ़ेंगे, इसके दूसरे वाले सेगमेंट में. ऑलरेडी बहुत सारा टाइम ले चुका है. ठीक है, इतना पढ़ के जितने क्वेश्चन पूछे उन सब के आंसर कर देना. चलो, थैंक यू.